Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. आज हम बात करेंगे कृष्ण वे ऑफ माइंड एंड कम्युनिकेशन पर, जहां पर एक एंशंट विजडम मिलता है मॉडर्न एनएलपी से। तो कैसे कृष्ण ने बैटलफील्ड में क्लैरिटी क्रिएट की, इमोशंस को रिफ्रेम किया और डिसीजंस को कैसे बदलने में हमारे प्रैक्टिकल टूल्स के साथ आज हम उसी एनएलपी को लेकर के आ रहे हैं। रेनाउंड कोच सना जी जो हमारे बीच में आ चुकी हैं, वो एक क्रिएटर है, एक लीडर है और एक स्टूडेंट रह चुकी हैं, और आज बहुत सारे लोगों को लीडर बन के सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे स्टूडियो में सना जी खुद चल के आई हैं। सो वेलकम सना जी। Thank you so much. Thank you so much, Anshul. नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार. कैसे हैं आप? Beautiful. I think बहुत मजे में. थैंक यू Thank you सो so much मच। for this warm welcome. I mean, एग्जैक्टली, मैं भी यही बोल रही थी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऑनर दिया कि मैं आपका पॉडकास्ट कर सकूं। थैंक यू सो वेरी मच। thank you. तो Thank you so much. सना जी, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Okay, so थोड़ा सा बेस पर लेकर जाऊंगी कहाँ से आई जस्ट स्टार्टेड विद ऑल ऑफ दिस। तो मेरी जर्नी, आई वाज जस्ट 17 years of age जब शुरू हुई, एंड आई स्टार्टेड एज अ स्कूल टीचर, एंड फॉर गुड 14 years आई वाज एन एजुकेटर, एंड मुझे लगता है माय स्टूडेंट्स वर ऑल दैट आई कुड थिंक ऑफ इन माय लाइफ, और उन्हीं की एजुकेशन वाज समथिंग जो मुझे बहुत प्लेफुल लगता था। बट आई थिंक लाइफ हैज इट्स ओन डिफरेंट प्लान्स, or there came a time in my life wherein I literally found myself in depression, panic attacks, and a very bad mental health. And I think us situation mein to look at your loved ones to struggle along with you was something that literally jolted me. So and my own father was a depression patient, and he died out of that. So I always had this question in head कि ऐसा क्या है इसमें जो कि a person can even leave this world because of it. तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है एज अ चाइल्ड ही मेरे अंदर बहुत था, और आई केप्ट क्वेश्चनिंग दैट अगेन एंड अगेन। और मुझे ऐसा कहा जाता था दैट इट्स इन योर ब्लड, तो ऐसा नहीं हो सकता दैट यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम इट। तो मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, हायरार्की में ब्लड प्रेशर हो सकता है और ऑल दैट स्टफ, बट व्हाई डिप्रेशन? बट व्हेन इट हिट मी इन माय लाइफ, आई थिंक दैट्स द टाइम I chose to heal myself without medicines because मुझे अच्छा नहीं लगता था दवाइयाँ खाना. So when I could very successfully come out of it, and by God's grace, I think that was the time in my life when NLP actually was the tool that saved me. And I would say it literally gave me a new way of life. और वो एक वक्त था when I felt that if this is something that can heal me, I had this feeling that I don't know how many out in the world they need all of this. And I think that is where my journey started. I literally started my journey with those people who were going through stress, anxiety, depression, and I have literally worked with people जिनको 22 साल 25 साल से depression tha, and they were having medicines and all that stuff. But by God's grace, I think NLP ने बहुत help करा. And I would rather say कि NLP तो एक ऐसे magical की तरह मेरी लाइफ में आई जिसने की, तो आई वाज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन सिंस चाइल्डहुड, बट आई थिंक दैट वाज वन थिंग जिसने की ना कि सिर्फ मेरे दिमाग, बट आई थिंक मेरी सोच, मेरे इमोशंस, it just changed my whole perspective towards life. I think जिंदगी के हर मुश्किल का लॉक ही खोल दिया उसकी में. So by God's grace, I think that is how my journey started. And I started helping people with all my tools that I learned. And फिर उसके बाद of course जैसे जैसे journey आगे चलता गया, I found my friends and my co-workers struggling with their online presence. And that is why I think the next shift in my journey came, wherein I became a business coach for life coaches, so that I could help them to turn their passion into profits, into real profits, not the ones just we talk about, but actual profits. So I think it was all God's grace. But yes, I think isi journey mein it was not all.
a few healing modalities, more healing modalities kept coming to my life as God's gift. But yes, I would say मैंने कितना कुछ भी चाहे आज तक किया हो, and by God's grace it is all with me, but NLP was my very first healing tool, and it was something which I felt it was never taught in schools, you know, but it is a tool that can just completely change everything in you, right? क्योंकि और and I think शायद I'll take this moment to thank you, क्योंकि शायद this podcast, if I've got to be here, I would rather take this moment to say to every single person, you know, who's hearing it, कि you know आपकी लाइफ की किसी भी स्ट्रगल में हो, whatever, you are an entrepreneur, you are a coach, you are a housewife, you are a student, whatever you are, but आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल है ना, तो believe me, the key to that lock which you call as a struggle of your life, that is within you only. The only thing that you need in your life is that one bold step to work towards it, and you can work wonderfully. Or if I talk about NLP, I think the name itself is the solution to everything. जी, बहुत ही नायाब इंट्रोडक्शन है आपका. अभी मुझे ऐसा लगता है कि मंजिलें और भी बाकी हैं. बिल्कुल, it's बिल्कुल. just the beginning. तो सना जी, एक बात बताइए. हम एक जमाने में हमारे नानी दादीज एंड ऑल ग्रैंडीज सब थे, तो कान्हा का नाम लिया जाता था. स्पिरिचुअलिटी वहीं से आई एक्चुअली. बिल्कुल. तो जब अब्रॉड से भी फॉरेनर्स आते थे, तो मतलब हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा. सो इन दैट केस स्पिरिचुअल और पर्सनल लेवल या एनएलपी को हम आज इसका रूप अगर देते हैं, तो ये आप कितना सही मानती हैं कि ये सही है, और आपके कोचिंग सेशंस में कैसे कंबाइन करती हैं आप दोनों चीजों को? Beautiful. I think, Anjal, to be very honest, spirituality, if we take it as, क्योंकि what is Kanha? He's the spiritual mentor in our life. Right. Right. उन्होंने ही हमें you know, वो खुद बोलते हैं कि गीता तो हर क्वेश्चन का आंसर है. बिल्कुल. Right. So the ones who are, you know, listening to it, and if in case there is anybody who actually does not know about NLP, तो मैं एक बहुत छोटी सी introduction NLP के लिए देना चाहूंगी कि NLP itself means neuro linguistic programming, right? What is neuro? It's your brain. What is linguistic? It's your language, and programming is your behavior patterns, right? तो you know, in very simple words, जो बदलना चाहते हैं वो भी आप ही हैं, और जो बदल नहीं पा रहे हैं वो भी आप ही हैं. Exactly. So NLP is something that, you know, literally detects that unconscious biasness. Unconscious है ना ये biasness. हम नहीं बदलना चाह रहे हैं, पर हमें पता नहीं हम कैसे बदले या क्यों बदल नहीं पा रहे हैं. तो NLP और spirituality तो, you know, it is actually not two different things. It is one only. क्योंकि वो एक दूसरे को complement करते हैं. NLP works with the mind language. Right. And with your patterns. And what is spirituality? Spirituality and Kanha ji, he always tells you to connect yourself with your inner wisdom. आपकी higher guidance, आपकी energy पर work करो. Right. अर्जुन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने अर्जुन से बहुत प्यार से कहा था कि अर्जुन ने कहा था कि you know, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं. Exactly. राइट. तो कृष्णा जी ने उनसे कहा कि ये सिर्फ शरीर है, आत्मा तो अमर है. एंड ही वाज द ओनली वन जो उनके सारथी बनकर चले. तो बेसिकली कृष्णा ने जब उस बैटल फील्ड में उनसे एक बहुत बड़ी वार्तालाप करी, वो क्या था? कृष्णा जी ने अर्जुन की बिलीव्स, अर्जुन के इमोशंस, उसके थॉट पैटर्न्स को क्वेश्चन किया. राइट. उनको रिफ्रेम करा. राइट. एंड व्हाट इज एनएलपी? वो भी तो यही करता है. आपके लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उनको एम्पावरिंग बिलीव्स में शिफ्ट कर देता है. आपके ओवरवेल्म को, आपके डाउट्स को, आपके फियर को, आपके गिल्ट को, आपके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को एक ऐसी स्टेट देता है जहां आप वो सोच सको विच इज विद मोर क्लैरिटी एंड नॉट विद कंफ्यूजन. कंफ्यूजन में थे ना अर्जुन जी कि मैं ये सब कैसे कर सकूंगा, कैसे ये हथियार उठा सकूंगा. तो आप किस कंफ्यूजन में हो?
आप वो सब कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते, तो आपकी लड़ाई किससे है? खुद ही से तो है। दुनिया से तो बाद में है, बस हमें वो चीज रियलाइज नहीं होती कि हम खुद से ही लड़ रहे हैं। तो एनएलपी इज नो डिफरेंट, इट इज द अमेलगमेशन, इट इज, आप समझो जो सार, आई वुड से, मुझे तो यही लगता है कि जो सार कान्हा जी ने हमें गीता में दिया है, एनएलपी इज द मॉडर्न गीता, यू नो। आपके आपके माइंड लेवल पर काम करता है, और आप अगर स्पिरिचुअलिटी लेवल पे देखो तो वो क्या कर रहे थे, आपको अलाइन कर रहे थे, दैट योर माइंड, योर हार्ट, योर सोल, इट कम्स इन वन प्लेस, एंड यू नो अर्जुन जी उस जोन में आ सकें कि वो एक राइट मेंटल स्टेट में रहकर एक्ट कर सके। तो इवन इफ यू टॉक अबाउट माय सेशंस आल्सो, तो हम I don't just change the way someone thinks. I try my best to upgrade their energy so that सक्सेस ना उनके लिए एक नेचुरल अट्रैक्शन बन जाए. इट इज नॉट समथिंग दैट दे चेज. तो ये जो आप एक्चुअली आप ये समझा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि एक इंसान के माइंडसेट को रिफ्रेम करके उसको एक ऐसी जगह पे लाया जाता है एनएलपी के जरिए कि वो अपने आप के लिए कुछ भी करने के लिए आगे रेडी हो सके. एब्सोल्युटली. देखो आपको लाइफ में क्या रोक रहा है? आपका सेल्फ डाउट रोक रहा है, राइट, फियर ऑफ जजमेंट रोक रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शन रोक रहा है. आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं कि नहीं नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, यू नो आई कैन डू इट, आई एम नॉट इनफ, शायद वो मुझसे बेहतर है, नहीं मुझसे कौन सीखेगा, मैं कैसे करूंगा. एक कोच लाइफ में भी क्या चल रहा है? इट्स नॉट ओनली अ यूजुअल पर्सन, इवन व्हेन कोचेस कम टू मी हु देमसेल्व्स हैव गॉट सो मच ऑफ नॉलेज, बट उनको भी क्या रोक देता है? यही सारी लिमिटिंग बिलीव्स रोकती हैं, राइट? और एनएलपी इज अ टूल जो आपकी इन सब बिलीव्स को एक बहुत ही नेचुरल वे में, जबरदस्ती से नहीं. देखो जबरदस्ती से तुम कुछ भी नहीं कर सकते. हम सब जानते हैं हमें क्या करना है, पर हम नहीं कर पा रहे. तो अगर हम जबरदस्ती कर पाते तो हम अब तक कर चुके होते. तो एनएलपी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इट्स अ टूल जो कि आप ही की कॉन्शियस लैंग्वेज से आपके न्यूरल पैटर्न्स को, जो आप इतने सालों से फ्रेम कर चुके हो, आप अपनी बिलीव्स क्रिएट कर चुके हो, आप एक सर्टेन वे में जीना सीख चुके हो, उसको वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही नेचुरल वे में विद योर डीप प्रोसेसेस उसको रीप्रोग्राम कर देता है, दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. आप कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हो. इट इज ऑल अबाउट, वो कहते हैं ना कि आप एक कमरे में बैठे और फिर आपने चारों तरफ अपनी बुक्स, अपनी चीजें सब फैला दी क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में समेटना भी तो आप ही को है. एग्जैक्टली. एंड दैट इज व्हाट एनएलपी डज. वो आप ही की फैलाई हुई उन स्कैटर्ड चीजों को बस एक राइट फ्रेमवर्क में स्ट्रक्चर कर देता है, सो दैट यू कैन एक्ट इन द बेस्ट ऑफ योर वेज. एग्जैक्टली. वंडरफुल. और क्या बोलूं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पाया मैंने आपको. थैंक यू. बिल्कुल. सो सना जी, मुझे एक बात बताइए, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स यू सी इन एंटरप्रेन्योर्स एंड हाउ कैन दे ओवरकम देम? Oh my God, I see so many of them, but I think to start with, I think the first thing that they have is I'm not good enough. They literally have these things in them that I'm not ready yet. What if I fail? It's a big question for them. I really want to do it, but then what if I fail? People won't pay me for what my services are. उनको हमेशा ऐसा लगता है that अभी काफी नहीं है. I need more experience before I start. Marketing is a very big question for them. Selling is a very big question for them. Marketing feels very pushy for them. It's like ये बहुत unauthentic है. And I think one thing which I think शायद आज से 20 साल पहले भी exist कर रहा था, आज भी कर रहा है, that market is saturated. Exactly. But I think देखो, the truth is these limiting beliefs, they are not your business problems. Actually, they are not an entrepreneur's problem. It is actually your mindset problem. The moment an entrepreneur decides to work on their mindset, believe me, everything changes. Because when you upgrade the way you think, you literally automatically upgrade the way you act. And results, I think they are something that literally just follows you. So if you ask me that how you can overcome with that,
I think the first thing that anybody, be it an entrepreneur or be it a very normal person, the first thing that I think is lacking in most of people is the mindset to invest in their own selves. हमने अपने आप को ना सबसे लास्ट इन द लिस्ट रखा होता है अपनी लाइफ में. हमें लगता है मैं सबको खुश कर लूं, अपनी बारी पता नहीं कब देखेंगे कब आएगी, राइट? But I think that first thing that you need to overcome any problem, any limiting belief, because your first limiting belief itself is that I am the last. So you invest in your own self-learning. This is going to open your eyes towards the perspectives I think you would have never even think of on your own. Secondly, I think शायद अगर मैं आज के एरा की बात करूँ ना, तो शॉर्टकट एक ऐसा शब्द है जिससे ना सबको बड़ी मोहब्बत है. दैट यू नो कोई शॉर्टकट मिल जाए कि हम जल्दी जल्दी से कुछ अचीव कर लें. तो आई थिंक अगर सच में कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है ना लाइफ में, तो आपके लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट है टू फाइंड अ राइट मेंटोर इन योर लाइफ. दैट्स माय सेकंड पॉइंट. शॉर्टकट वाला मिल जाता है, राइट? सो वो शॉर्टकट मैं बताऊं होता ही नहीं है. इट इज जस्ट अ मिथ, बट स्टिल एक होता है ना, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए. तो आपको सच में अगर शॉर्टकट ढूंढना है तो एक राइट मेंटोर ढूंढो, एक राइट कोच ढूंढो. बिकॉज let me even explain why I'm saying this, because they have already walked the path that you want to be at. जिस डेस्टिनेशन को आप पाना चाहते हो उसको वो पा चुके हैं. So they can literally help you avoid years of trial and error. जिनको शायद सालों लग जाएंगे, आपको भी अब सोच ही रहे हो, उतने में आपको अचीव भी करवा देंगे. And I think हम तो बहुत लकी हैं. We are literally very lucky enough to, we are living in an era जहाँ पे to find coaches, find mentors for like whatever problem you can think of. It's like very easy thing. That only thing that any person, any entrepreneur, any coach, any housewife, any person needs is that one bold decision. वो जो आपके अंदर के है ना कि I can't, I am not ready, ये सब stories, they will all lose, that will lose its power. Exactly. It will lose its power and it will be literally replaced with your confidence, with your clarity and that courage to go bigger. कभी कभी हम सोच बहुत बड़ा पाते हैं, बस एक्ट नहीं कर पाते. वो एक मेंटोर आपको ना पुश दे देता है that go, I am at your back, तुम करो, it's okay, even if you fall back, I have another thing to do for you. So that is when, as a business, your business stops feeling like a struggle and you start to feel it like a mission that you are, you are meant to be there. क्योंकि फिर आप वो कर रहे हो जो बस आप करना चाहते हो. Right. Because है रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, और उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज भी होता है. सॉरी, उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज भी होता है. देखो एक्चुअली ना एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, दैट्स योर माइंड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू. हम जिनको एक्सक्यूजेस मानते हैं ना, आपके दिमाग, आपने ना एक्चुअली कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है लाइफ में जो आपके लिए एविडेंस की तरह काम करता है कि इसमें तो फेल हो गया था पहले. और फेलियर को ना हमारी सोसाइटी में इतना एक ओवर पावर वर्ड की तरह लिया जाता है ना. फेलियर इज नेवर सीन एज अ फीडबैक. फेलियर इज नॉट सीन एज अ लेसन. इट्स नॉट सीन एज एन एक्सपीरियंस अनलेस somebody gives you that perspective. आपको लगता है फेल हो गया मतलब मैं तो खत्म. But just look into your life, wherever you failed and you literally got back and did again things to reach the space जिसमें भी आप फेल हुए थे ना, you literally had a lesson in that failing. शायद आपको उससे कुछ बेहतर करना था. तो जहां एक एक्सक्यूज है ना, वहां एक्चुअली एक्सक्यूज नहीं है, वहां डर है, एक फियर है कि मैं फिर से फेल हो गया तो, मैं फिर नहीं अचीव कर पाया तो. एंड दैट इज वेयर माइंड इज प्रोटेक्टिंग यू. और ये हम नहीं जानते, ये इतनी बेसिक सी चीजें हैं. जब हम एनएलपी में सीखते हैं इनको, तो वी लिटरली अंडरस्टैंड दैट हाउ योर माइंड वर्क्स, वो कैसे आपको ट्रिक करता है. तो वो एक, आई थिंक शायद आपने वो हॉर्स एंड हॉर्स राइडर वाला स्टोरी सुना होगा, दैट it is in your hands. The moment you decide that I am not the horse, it has to be the horse and I am the horse rider. वो तभी पॉसिबल है जब आप इसकी भाषा को समझ सको. देखो कंप्यूटर में आपको लगता है कि ये मेरी भाषा समझ रहा है, बट देयर आर कोड्स देयर,
राइट, जिनको कि वो डिकोड करके आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. सेम वे एनएलपी इज व्हाट, आप अपनी माइंड की लैंग्वेज को समझ रहे हो एंड देन यू आर एक्टिंग इन अ वे दैट यू लिटरली डू व्हाट यू वांट टू डू. अब हो क्या रहा है कि मेरी भाषा मैंने कुछ और बना रखी है, माइंड मेरी किसी और ही लैंग्वेज को समझ रहा है, तो वो दोनों का तालमेल ही नहीं बैठ रहा. मैं इसको ट्रिक कैसे करूं जब मुझे यही नहीं पता कि मैं इसके बस में हूं. तो माय फर्स्ट स्टेप इज दैट अवेयरनेस कि मुझे इसका गुलाम नहीं बनना है, मुझे इसको अपना गुलाम बनाना है, जो कह सके मुझसे कि कहिए मेरे आका, क्या आपका व्हाट इज योर कमांड एंड योर विश विल बी ग्रांटेड. सो इट्स दैट वे ऑफ लर्निंग द आर्ट ऑफ देखो, हमें ना किसी ने सोचना ही नहीं सिखाया, और हमें लगता है सोचना कैसे कोई सिखा सकता है, बट इट इज पॉसिबल. When you learn the language of your mind just the way you learn the language of your computer, just look at your life changing like that. Perfect. So, सना जी, मुझे ये बताइए कि कौन सी डेली अफर्मेशंस एक आप डेली हैबिट्स में रिकमेंड करती हैं एक बिजनेस लीडर को? Okay, so if I start with habits, I think of course, अगर habits की बात की जाए तो I think Anjal, gratitude is something which has to be a part of your life. It is like the highest frequency that a person can be in. देखो, हम ना इतने complainful genre में रहते हैं that we tend to forget कि हमारे पास already कितना कुछ है. So I think if you talk about the habits first, so the moment I wake up in the morning, the 10 random gratitudes, any 10 things in my life. I mean, I have thousands of them, but any 10 in the morning, I'm grateful for, even waking up, to have my morning tea, to have this ambition in my life. I have my clients with me. I have this house that I'm living in. There are so many जिनके पास ये भी नहीं है, basics ही नहीं है. So, having that gratitude is your first habit that you should have. Second thing is your mirror work. It works like wonders. Get up and be your best cheerleader. You keep waiting for people in your life, कोई आकर मुझसे कह दे that, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो. अरे, don't wait for somebody. Be your first cheerleader. Be your biggest fan. I just love it when Shah Rukh says this, that, I am the best does not put me into a pedestal wherein, I'm comparing myself with somebody, but it is a place wherein I have no competition, because my own competition is my own self. तो हर रोज सुबह उठकर जब उस आईने में खड़े होकर आप अपने आप से कहते हो ना that I am the best, it's like a beautiful thing to do, क्योंकि वो आपको उस जोन में डालता है जहां आपको किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है. And if you talk about a few affirmations, I would say a few that I talk to myself is I am the best. I am completely protected by my divine energies. I trust myself. I love myself. And I accept myself the way I am. The moment you start loving yourself, I think you start loving every single thing around you. And the beautiful part of this affirmations is whatever bottle I use or whatever mug I use, I write it down on them, or I literally paste it on my water, because that gives me a feeling that every sip that I take is a sip of intention. Right. And I think the last one habit that I would love to give it to everyone is, before you sleep every single night, at least one biggest win of your day. And believe me, वो जो biggest win होता है ना, लोगों को लगता है कुछ बहुत बड़ा किया होगा हमने लाइफ में, तो उसके लिए हम सोचें. बट आई थिंक अगर आप एक दिन में वो 5 मिनट निकाल सके जहां आपने बैठकर टिक कर खाना खा लिया, इट्स अ वेरी बिग विन. आंचल, दीज डेज पीपल आर रनिंग. उनके पास ना जिस खाना खाने के लिए वो भाग रहे हैं ना, खाना खाने का वक्त भी नहीं है. Absolutely right. Every single night when you sleep, आप अपनी achievements जब खुद अपने आप को याद दिलाते हो ना, तो मुझे लगता है कि आपकी complaints का level बहुत reduce हो जाता है. Because we keep waiting for a successful day, but I would say stop waiting for a successful day to happen and make each of your day a success story of its own by showing that gratitude, by being by literally working on your self-belief and having that intentional action for yourself.
वो एफर्ट लो कि मुझे बेहतर खुद ही से बनना है, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है. I'm not here to compete with people. I'm here to compete with my own self and become my own better version with every single day. Your life will be sorted. वो तो मैं देख चुकी हूँ आपको. हम बहुत टाइम से पॉडकास्ट करने की सोच रहे हैं और इतना पेशेंस है आपके अंदर कि आज भी आपने वही बोला कि नहीं हुआ तो दोबारा कर लेंगे. तो आई थिंक ये पेशेंस को ही सल्यूट अपने आप में करना चाहिए. Thank you. सो I think सना जी, हीलिंग yeah, थेरेपीज जो होती हैं वो मेंटल क्लैरिटी को सपोर्ट करती हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती हैं बिजनेस में. completely. I mean, completely. And Anshul, not only just for business, I think healing therapies, they literally work at your root level. आप सोचो आपके पेड़ को, आपके प्लांट को कुछ गड़बड़ हो गई है, कीड़ा लग गया है, और आप सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से खाद डालते जा रहे हो, तो लिटरली क्या वो सही होगा? जब उसका रूट ही सड़ चुका है तो वो क्या ही ठीक होगा. बिल्कुल. लेकिन जब आप उसके रूट पर काम कर रहे हो कि मैं जहां से भी वो स्टार्ट हो रहा है ना उसको ठीक करना चाहता हूँ, हाउ इज नॉट योर प्लांट गोइंग टू ग्रो इनटू अ ट्री फुल ऑफ दोस फ्रूट्स, तो व्हाट इज लाइफ? क्या है आपकी जिंदगी? इट्स नॉट योर जॉब, इट्स नॉट योर बिजनेस, and it's not your family. It's literally the sum total of your own thoughts, of your own emotions, your own inner state every single day. और बिजनेस क्या है अगर हम उसकी भी बात करें तो इट इज नथिंग बट इट इज लिटरली द एक्सटेंशन ऑफ हु यू आर. आपके डिसीजंस, आपकी एनर्जी, आपका रेजिलियंस, आपका माइंडसेट इन एक्शन. तो अगर आपका माइंड क्लटर्ड है, स्कैटर्ड है, आपके इमोशंस हैवी हैं, आपकी एनर्जी एकदम चारों तरफ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो बोथ योर लाइफ एंड योर बिजनेस दे विल लिटरली स्टार्ट टू फील लाइक दैट कांस्टेंट अपहिल बैटल. आप खुद से ही लड़ते ही जा रहे हो. But what healing therapies does is that they लोगों को लगता है सिर्फ रिलैक्स होने जा रहे हैं, but it's not that. It's much more deeper than that. You're not there only to relax you, but they literally clear that noise that's going into your head, that helps you to release that baggage which is actually not yours also. आप ना हम इतना कुछ अपने साथ कैरी कर रहे हैं जो एक्चुअली में बिलोंग भी नहीं करता. And all these healing therapies, they literally align, जिसको हम बोलते हैं ना कि सुनते तो हम बहुत हैं कि align your mind, align your body, align your heart, but then how to do it? These healing therapies are something that brings that clarity, and that brings you into a state where you can literally act with that confidence that you have in you. So when you heal inside, you operate from a place of strength, you operate from a state of calm, एक पर्पस आ जाता है आपको, एंड देन ऐसे लगता है जैसे वो एक धुंध है ना, दैट ऑल फॉग just completely shifts, and that reflects in your work, it reflects in your relationships, it reflects in your work. So I think healing is something that is going to literally show up in every corner of your life, whatever you take as. जैसे आपका स्ट्रेस जो है ना, हमें लगता है ये बिजनेस स्ट्रेस है, पर वो आपके रिलेशनशिप्स में भी आता है, वो आपके हेल्थ में भी दिखता है, वो आपके कामनेस में भी दिखता है. ऐसे ही जब आप हील हो रहे हो ना, और आपका जो वो इंटरनल शिफ्ट है वो आपके हर एस्पेक्ट पे आएगा, आपके हेल्थ में आएगा, आपके वेल्थ में आएगा, आपके करियर में आएगा, आपके रिलेशनशिप्स में आएगा, आपका रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड हो या रिलेशनशिप विद सेल्फ हो, हर चीज में दिखेगा. तो healing therapies, I think they completely changed my whole way of rather thinking of a lot of things. Right. It was my biggest breakthrough, I So think सना वो जी, जो डार्कनेस होती है ना आपकी लाइफ की, वो हाँ. यहाँ पे I would rather say कि कान्हा जी, when he was born, तो उनका तो बर्थ अपने आप में एक टेस्टिमनी है इस बात की, that he was born in dark, अंधेरे में पैदा हुए थे, राइट? और पैदा होते ही क्या हुआ? those doors opened up, guards सो गए, chains अपने आप खुल गई. कैसे खुल गई? लेकिन he showed it up that when you are ready, it's your divine time. जब वो होता है ना आपकी लाइफ में, तो कोई ताला, कोई एनर्जीज कुछ आपको रोक नहीं सकता.
And he was born in darkness to let you know that, you know, darkness is a place where your big breakthroughs are. आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ही हैं जो आपकी लाइफ के बिगेस्ट ब्रेकथ्रूज बनकर आपकी लाइफ का पूरा ट्रैजेक्टरी ही बदल देते हैं. एग्जैक्टली. तो एंड एक चटपटा क्वेश्चन, अगर लॉर्ड कृष्णा आपके क्लाइंट होते तो क्या एडवाइस और गाइडेंस उनको देती, क्या ऑफर करती आज की दुनिया के हिसाब से? ओके सो आई थिंक आज की दुनिया के हिसाब से ना अंशल, आई वुड से कि जहाँ कान्हा है ना वहां उनकी बांसुरी है ना. और मुझे लगता है कि उनकी बांसुरी एक ऐसी चीज है जो कि द मोमेंट यू हियर इट यू आर जस्ट इन योर बेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स, यू नो. तो मुझे लगता है अगर आज वो होते ना तो मैं उनसे कहती कि आप ये जो बांसुरी बजाते हो ना, don't play it to please the crowd. You play it to enjoy your uniqueness, your purity, because that is your USP. तो आज की लाइफ में ना जहां लोग इतनी एक्सपोजर में हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ यू नो फॉलो कर रहे हैं जिसकी शायद उनकी जिंदगी में जरूरत ही नहीं है. तो आई थिंक इन द वर्ल्ड ऑफ दिस नॉइज एनी पर्सन, यू नो, अगर आज कान्हा जी होते और मेरा क्लाइंट होते तो शायद एक इंसान ही होते. तो मैं उनसे यही कहती दैट यू नो योर ऑथेंटिसिटी इज योर रियल डिवाइन पावर. अपनी यूएसपी को अपने खुद के यू नो उस ग्रोथ के लिए यूज करो. डोंट यूज इट टू प्लीज द क्राउड. लोग कभी खुश नहीं होने वाले. Use it for yourself and so that you feel that calm and you feel your own purity first. आप खुद अपनी उस serene side को देख सकोगे ना, तो I think आपको जरूरत ही क्या है, लोगों को वो अपने आप से प्रत्यक्ष हो जाएगी, दिख जाएगी सबको. राइट, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी नहीं होती. जरूरत नहीं. एब्सोल्युटली. कोई एक लेसन जो कान्हा जी का, कोई एक लेसन आप चाहते हो कि एवरी entrepreneur should adopt, क्या होना चाहिए? Okay. I think I'll give 3 here. Okay. So my first ever advice, I would say what you say is lesson is the strategy. महाभारता अपने आप में एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, you know, लेकिन वो जो बैटल थी ना उसे चूज किया गया था. उन्होंने ऑप्शन दी थी ना, मैं या मेरी पलटन. तो यू नो चूज योर बैटल्स वाइजली. हर लड़ाई आपकी नहीं है. सो प्लीज स्टॉप बैटलिंग फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ. चूज योर बैटल्स वाइजली एंड व्हेन यू चूज अ बैटल द स्ट्रैटेजी इज द सोल. Secondly, build genuine relationships. You know, if you want to literally lead, because who is an entrepreneur, who is a coach, he wants to lead in life. But if you really want to lead in life, lead with love. You know, people follow those people very naturally, you know, who literally makes them feel seen, जो उनकी भी सुनकर चलते हैं. And the third thing, as an individual, if you ask me, I would say as an entrepreneur, हम बहुत stress लेते हैं. Make playfulness your life. You know, if you're building something, if you're building that business, if you're building that empire, build that with real joy inside and not with your pressures. You know, बन तो जाना ही है. क्या फायदा वहां तक पहुंच के कहोगे अरे यार लाइफ तो एंजॉय नहीं की. तो एंजॉय एवरी स्टेप. अपना फेलियर भी एंजॉय करो यार, वहां पर भी कुछ ना सीखने के लिए पड़ा है. तो आप उसको भी देखने लगोगे ना, योर लाइफ विल गेट सो ब्यूटिफुल. तो वो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तभी तो जी रहे हो ना. वो अप एंड डाउन होके स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो यू आर गॉन. सो मेक प्लेफुलनेस योर रियल वेपन इफ यू रियली वांट टू बिल्ड समथिंग बिग इन लाइफ. बहुत बढ़िया बात कही है आपने. सो चलते चलते एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ. Sure. One mantra that keeps you going. Everything is figure outable. Okay. Krishna, leader or love? Both. I think to be a true leader, unconditional love has to be your core. Chakras or strategy? What heals faster?
purely chakras. I mean, they fix the energy and and your strategies will just automatically flow. Morning ritual you swear by? 10 random gratitudes for sure, and that mirror work. I am the best. One myth about NLP you want to bust? That it's a mind control. No, it's a mind freedom. It's like ultimate independence of, those that cage you're living in, and those things that are, just binding you back. What's your favorite Krishna Leela? Govardhan, because true leadership, I believe, is something that is about sheltering others during the big storm. So that was my one of the favorite leaders. Wow. कोई एक सेलिब्रिटी जिसको कभी आप कोई कोचिंग देना चाहती हो, आपका मन है वो आपके पास कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी आए जो आपसे कोचिंग दे सके एक एनएलपी की? भले वो एक ही सेशन हो, लेकिन वो कौन सा सेलिब्रिटी हो? I think I would love to sit with, I don't know if it goes for coaching, but I'm sure I would love to sit with either Sushmita Sen or Shahrukh. I love these two people. I think मैंने खुद उनसे बहुत कोचिंग ली है. They are my biggest mentors, and I think उनके साथ एक रूम में बैठना would be a big achievement for me. Wonderful. So, Sana ji, as an coach Sana, हमारे इंडिया की वुमेन्स को, इवन मेंस को भी, बच्चे को भी, क्या आपका एक मैसेज देना चाहेंगी जिससे उनकी कम से कम थोड़ी सी दुनिया बदल जाए? As I said, I think my biggest mantra I would love to give them that everything is figure outable. आप जिस भी सिचुएशन में हो और आपको जब भी ऐसा लग रहा है ना कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बिलीव मी, आप कर लोगे. At that point of time, just think of it. आपने बहुत कुछ अचीव करा है. And the biggest message, if I can give anybody, is to truly love yourself. Stop waiting for somebody to come to your life and uplift you. You are your biggest savior. You are your biggest lover. You are your biggest cheerleader. You are your biggest strength. तो प्लीज अपनी खुद की आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी को किसी से कम मत समझो. यू हैव नो कंपैरिजन. आप जैसा और कोई नहीं है. यू आर योर ओन यूएसपी. आप लोगों में अपने आप को ढूंढना बंद करो. आप पहले अपने आप को ढूंढो. लव योर सेल्फ, बी विद योर सेल्फ. दिन के सिर्फ 5 मिनट खुद से ना सिर्फ ऐसे जस्ट हग योर सेल्फ एंड सी द वंडर्स हैपनिंग इन योर लाइफ. Absolutely. Wonderful. So, सना जी, कैसे आपसे कोई आपकी सेशंस के लिए कैसे कोई आपसे अप्रोच कर सकता है? कहाँ आपसे कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर बता दीजिए. वैसे एपिसोड के नीचे लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं. Yeah, sure. So I'm on Instagram with the name Coach Sana 11. आप चाहें तो वहाँ मुझे DM कर सकते हैं. And I think I'll share my professional numbers also with you, so you can share them on your podcast. And if anybody is interested, they can just give us a call, and my team can connect with them. Absolutely right. So thank you so very much. आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई और बहुत दिनों के बाद ये एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आप मेरे साथ मेरे सामने बैठी हैं. बहुत खुशी हुई मुझे. और जितना सुना था उतना पाया भी है, उससे ज्यादा ही कहीं पाया है. नॉलेजेबल आप बहुत हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हो सके तो ये प्यार पूरी दुनिया में बिखेर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ गलत भी हो रहा है जितना सही हो रहा है. तो Absolutely. I think that's my biggest mission, Anchal. I think I am already on that path कि मैं यही चाहूंगी. This is my biggest dream in my life कि I really want to reach out to, I think, millions out there, because वो कहते हैं ना कि दबाने वाले बहुत हैं और दबने वाले लोगों की तो कोई सीमा ही नहीं है. बट हमें ना सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है जो आकर हमसे बस इतना कह दे कि मैं हूं तेरे साथ.
you're not alone. बड़ी बात आप होती है। अकेले नहीं हो. So if anybody who's here and who thinks that that person is alone in that stressful journey, तो शायद मैं उस हर इंसान से यही कहूंगी, you are never alone, never alone. सिर्फ एक बार हाथ बढ़ाकर देखो, your God will definitely send you. I think मेरे जैसे ऐसे बहुत होंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं. It's not only me. I think there are a lot many out there who are working for this humanity, who are working for people's upliftment, who are working for the core message कि हम किसी की मदद कर सके और किसी की जिंदगी बेहतर हो सके. So आप hesitate मत करो, take that first step. और बोल्डली यही डिसीजन है आपकी लाइफ का. बोल्ड डिसीजन क्या है कि मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ, तो वो पहला कदम ले सकूं कि हाँ मुझे ये करना है, एंड आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस. आई हैव गॉट दिस लाइफ. भगवान ने मुझे भी इस दुनिया में जीने ही भेजा है, तो उसको जीने के लिए और खुशहाल तरह से जीने के लिए मुझे पूरा हक है. आई एम वर्दी ऑफ इट. टू हैव दैट वर्थ इन योर लाइफ. एक बार आप आगे हाथ बढ़ाकर देखो, आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा. मैं मिल जाऊंगी और मेरे जैसे बहुत सारे जेन्युइन लोग आपको मिल जाएंगे जो वहां बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए. पर पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा. वो कहते हैं ना, खाना तो आपके आगे परोस दिया जाता है, पर खाना खुद को ही पड़ता है. तो आप वो पहला कदम उठाओ. हैव दैट करेज टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ दैट permission that I want to live happily, and see you will find somebody in your life जो आपको help कर ही देगा. So have that courage. बिल्कुल. So चलते चलते एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको अपनी तरफ से. आप बहुत ही दिल से भी आउटर इनर बहुत खूबसूरत है. Thank you very much. Thank you so very much. Thank you. So viewers, आज आपने सुना सना जी की कहानी, उनकी जुबानी. जल्दी ही एपिसोड रिलीज कर दिया जाएगा. लिंक शेयर कर दिया.